Good morning, all of you. You all are welcomes in the Sacred Heart School online classes. Today in this video, we will discuss about the most advanced theory to explain the formation of the covalent bond, that is the molecular orbital theory. And we know very well this theory is responsible to explain the formation of the two orientation whenever the overlapping of atomic orbitals take place. The main purpose of this theory, that is by which we can explain the formation of the molecular orbital. According to this theory, whenever the two atomic orbitals are mixed together, so they will combine to form the two type of orientation. One, that is bonding molecular orbital, and the second one, that is anti-bonding molecular orbitals. In this theory, the each line in the diagram represent an orbital. The molecule orbital volume encompasses like the whole molecule. The electron fill the molecule orbitals of the molecules like electrons fill atomic orbitals in the atom. The whole representation of the molecular orbital theory can be expressed in term of the diagram that known as LCAO diagram. And this LCAO represent, that is the linear combination of the atomic orbital. What do you mean by this LCAO? LCAO means that is the linear combination of the atomic orbital. So whenever we plot the any LCAO diagram, the whole diagram is represented in a form of the lines. So each line is equal to the atomic orbital, and these atomic orbital overlap to form the different type of the molecular orbital. Not only this one, according to the molecular orbital theory, we have to fill, whenever we fill the electrons in the atomic orbitals, so that time we have to remember that these electrons formation always follow the concept of the Hund rule and concept of the Pauli's exclusion principle and other basic rules of the quantum mechanical model. First of all, we are taking the molecular orbital diagram of the H2O. This whole representation given in this picture that known as the LCAO diagram. In this diagram, we are going to explain how the formation of the H2 molecule takes place. We know very well this H2 molecule is made up of two hydrogen atoms. The one hydrogen atom, the journal electronic configuration is 1s1, and the second hydrogen atom, the journal electronic configuration is 1s1. So whenever these two type of the atomic orbital, that is 1s and the 1s overlap together, so they will overlap together to form the two type of the molecular orbital. The central part of this diagram represent the molecular orbital, and the side part, the lateral side of this diagram shows the atomic orbital. The whole representation we have to express in term of these lines. Clear? So whenever the constructive overlapping take place between the 1s and 1s atomic orbital, so they will combine to form the sigma 1s. This sigma 1s indicate the formation of the bonding molecular orbital. On the other hand, whenever the 1s and this 1s, they will overlap together by the subtractive interference, so they will combine to form the sigma asterisk 1s formation. So in this way, first of all, we have to fill the electrons in the sigma 1s. Reason behind, the energy level of this sigma 1s quite lower than the sigma asterisk 1s molecular orbital.
So we have to follow all the basic rules of the quantum mechanical model for the filling of electron, and these rules may be the Hund's rule of the maximum multiplicity, the Pauli's exclusion principle, and Avaho principle, or you can say N plus L golden rule. And all these rules you have done in the previous chapter, that is the structure of the atom. So I think you all have recalled this rule, and you have to apply all this rule at the time of the filling of electron in this LCAO diagram of this hydrogen. So in this diagram, first of all, the first electron come in the sigma 1s. जब तक sigma 1s completely filled नहीं होगा तो electron cannot jump to the higher energy level, that is the sigma asterisk 1s. The first electron come at this side, second electron comes at this side, and the whole configuration becomes sigma 1s2 and sigma star 1s0. So this is the LCAO diagram of this H2 molecule. Now we are taking slightly more complex LCAO diagram of the O2 molecule. Basically, this LCAO diagram is applicable for O2, F2 and Ne2 molecule, and this complete orientation given in this diagram is applicable only for the three molecule, that is O2 molecule, that is N2 molecule as well as the F2 molecule. तो याद रखिएगा ये जो डायग्राम आपके सामने इंडिकेटेड दिया हुआ है, ये डायग्राम सिर्फ तीन मॉलिक्यूल के लिए ही एप्लीकेबल है. अगर आप N2 मॉलिक्यूल या C2 मॉलिक्यूल या किसी और मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसके लिए LCAO डायग्राम का ओरिएंटेशन स्लाइटली डिफरेंट होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द LCAO डायग्राम ऑफ द O2 मॉलिक्यूल. यू ऑल नो the oxygen molecule is made up of the two oxygen atom. These two oxygen atom basically made up of the 8 electrons. So in this part what we are showing the oxygen atom 1, and this part we are showing the oxygen atom 2. तो in this way ये जो ऑक्सीजन का एटम आप दिखा रहे हो, as per the electronic configuration according to the electronic configuration of the O2 molecule, the electronic configuration is 1s2, 2s2 and this is 2p4. Out of the 8 electrons what we are indicating, first of all this is 1s2, this is 2s2 and this is 2p4. This is the second oxygen atom. The configuration is 1s2, 2s2 and this is 2p4. So whenever we plot this LCAO diagram for this O2 molecule, तो सबसे पहले आप किसका ओरिएंटेशन डिस्कस करोगे? जब एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो आपको मालूम है दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा. जो नीचे वाला है इसका नाम है सिग्मा 1s, जो ऊपर वाला है इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s. नीचे वाले को हम बॉन्डिंग, ऊपर वाले को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं. इसी तरीके से आपका जब OS एक दूसरे OS से ओवरलैप करेगा तो ये बनाएगा सिग्मा 2s और ये बनाएगा सिग्मा स्टार 2s. ऐसे ही आपके 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा पहली बार p का ओवरलैप आप समझ रहे हो तो whenever the p एटॉमिक ऑर्बिटल जो 3 होते हैं अपने जैसे रिमेनिंग 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल से जब ओवरलैप करेंगे तो आपको मालूम है एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 बनेंगे पाई बॉन्ड. तो ड्यू टू एनर्जी कंसीडरेशन सबसे पहले सिग्मा 2pz ये नीचे की तरफ है, ये बॉन्डिंग वाला है, और ये पाई पी वाई, ये दिस इज पाई पी वाई एंड दिस पाई पी जेड, ये दोनों इक्वल एनर्जी के 2 पाई बॉन्ड हैं. ध्यान दीजिएगा जब 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनके ओवरलैपिंग में जो हेड टू हेड ओवरलैप होगा वो बनाएगा आपका सिग्मा पी जेड, और जो पाई पी एक्स है और पाई पी वाई है इन दोनों का एनर्जी लेवल एक दूसरे के इक्वल होगा. इसी तरीके से
ऊपर की तरफ कौन से बनेंगे आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये आपका पाई पी एक्स है, पाई स्टार, दिस पाई स्टार पी एक्स है, दिस इज पाई स्टार पी वाई एंड दिस द पाई एस्ट्रिक पी जेड। तो अब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किसके अकॉर्डिंग करोगे, बॉटम से ऊपर की तरफ किसके अकॉर्डिंग करोगे, अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल, अकॉर्डिंग टू द पाउली प्रिंसिपल एंड अकॉर्डिंग टू द आवाहो प्रिंसिपल। सो कंप्लीट ओरिएंटेशन में सबसे पहले ये 1s2 इलेक्ट्रॉन, ये 1s2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे और ये सिग्मा 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अब बारी किसकी आती है, 2s2 एंड 2s2 की। इन दोनों के ओवरलैप से सिग्मा 2 ये आपका बनेगा सिग्मा 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बॉन्डिंग वाले में, फिर 2 किस में आएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन एंड ये 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने p के 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक p एटॉमिक ऑर्बिटल में 4, दूसरे p एटॉमिक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे यहाँ पर करना है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, दूसरा भी इसमें आएगा हुंड रूल के अकॉर्डिंग, फिर थर्ड इसमें आएगा, फोर्थ इसमें आएगा, फिफ्थ इसमें आएगा एंड सिक्स इसमें आएगा। तो पेयरिंग से पहले दोनों के पास एक एक हाफ फील्ड होना चाहिए। तो आउट ऑफ दिस 4 and 4 8 इलेक्ट्रॉन्स में से मैंने 6 तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब मेरे पास कितने बचे, 2, तो 2 एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर आएगा। जब तक दोनों को एक एक हाफ फील्ड नहीं कर दोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो दिस कंप्लीट डायग्राम नोन एज LCAO डायग्राम ऑफ द O2 मॉलिक्यूल। अगर मैं N2 मॉलिक्यूल की आपसे बात करूं, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स पर, अगर मैं N2 मॉलिक्यूल की आपसे बात करता हूं तो N2 मॉलिक्यूल में इस पर्टिकुलर साइट पर जिस पार्ट को मैं एनसर्कल कर रहा हूं, इस पार्ट में आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। जो पाई पी एक्स है और जो पाई पी वाई है वो तो आ जाएंगे नीचे, और जो सिग्मा पी जेड है वो चला जाएगा आपका ऊपर की तरफ। क्या बोला मैंने, पाई पी एक्स एंड पाई पी वाई नीचे की तरफ आ जाएंगे और जो सिग्मा पी जेड है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। एंड दैट ओरिएंटेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एक्सक्लूडिंग O2, F2 और Na2। तो याद रखिएगा O2, F2, Na2 के लिए तो ये वाला ओरिएंटेशन है, और बाकी N2, C2, लिथियम जितने भी दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उन सब के लिए आपको मैंने डिफरेंस बता दिया। ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ इंक्लूड हो जाएंगे। तो दिस डायग्राम नोन एज LCAO डायग्राम, एंड दिस डायग्राम इज क्वाइट हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। किस तरीके से आप प्रॉपर्टी को होमो एटॉमिक को एक्सप्लेन करोगे, तो याद रखिएगा इस एक्सप्लेनेशन में आपको अगर एक भी जो बीच वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इसमें से एक भी अगर हाफ फील्ड आपको दिखाई दे रहा है, जैसे इस केस में 2 हाफ फील्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स बिकम्स पैरामैग्नेटिक। अगर सारे के सारे कंप्लीटली फिल्ड होते तो आप इसको क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। क्या डिफरेंस होता है पैरा में एंड डाया में, अगर कोई भी मॉलिक्यूल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, द मैग्नेटिज्म अराइजेज फॉर द मॉलिक्यूल नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई भी मॉलिक्यूल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली रिपेल करता है, द मैग्नेटिज्म अराइजेज दैट नोन एज डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस LCAO डायग्राम, अगर आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी हाफ फील्ड दिखाई दे रहा है तो आप उसको पैरामैग्नेटिक बोल देंगे, और सारे के सारे अगर कंप्लीटली फील्ड आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप उसको डायामैग्नेटिक मॉलिक्यूल बोलोगे। तो नॉट ओनली दिस वन, आप इसके बेस पर, इस डायग्राम के बेस पर मॉलिक्यूल्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी, आप इस डायग्राम के बेस पर उसका बॉन्ड ऑर्डर और उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एस्टिमेशन भी कर सकते हो। तो दिस थ्योरी इज वाइडली एक्सेप्टेड, रीजन बिहाइंड बिकॉज दिस थ्योरी is useful to explain the formation of various homoatomic as well as the heteroatomic molecules. So now I am proceeding towards the basic conclusion of the molecular orbital theory. सबसे पहला पार्ट, bonding electrons are said to be localized between the atom. इसका मतलब
जब भी कोई बॉन्ड सेटअप होता है तो इलेक्ट्रॉन्स आर सेट टू बी लोकलाइज्ड बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग एटम, और उनका कोई भी लोन पेयर, तो लोन पेयर वर्ड को एक्सक्लूड करके लोकलाइज्ड वर्ड को यूज़ किया गया। एंड फर्स्ट टाइम दिस टर्म coined बाय दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सेकेंड, जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल ओनली बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एक इस थ्योरी का की पॉइंट है, क्योंकि जब भी ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल का होगा तो वहाँ पर दो तरह की प्रोबेबिलिटी होगी। एक मैंने आपको बता दिया है प्रीवियस वीडियो के अंदर कि फर्स्ट का केस, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो सब्सट्रैक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा, जिसकी वजह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेकंड पॉइंट की पॉइंट है इस थ्योरी का। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन कैन ऑक्यूपाई द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। तो याद रखिएगा, ये बहुत पुराना पॉइंट है, आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पढ़ते आ रहे हो कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट नहीं होगी तो रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा, एंड दैट्स वाई वो आपस में कंबाइन करने के साथ साथ कभी भी आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। बॉन्डिंग इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द एटम। जितने ज़्यादा बॉन्ड के फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एटम्स के बीच में उतना ही बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि यही एक थ्योरी है जो ये कहती है कि अगर सिग्मा बॉन्ड सेटअप हुआ तो उसकी भी दो प्रोबेबिलिटी हैं, एक तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्रू और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के थ्रू। अगर कोई आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आप बता रहे हो तो उसकी भी दो प्रोबेबिलिटी हैं। तो मतलब अगर तीन पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो एटम्स के आपस में ओवरलैप करेंगे तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म द सिक्स बॉन्ड। तो पहली बार इस थ्योरी के बेस पर यह बताया गया कि बॉन्डिंग इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द एटम इफ इट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर द एटम टू फॉर्म द आयनिक एज वेल एज मेटेलिक फॉर्म। तो याद रखिएगा, जब आप हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का केस इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे पढ़ोगे तब आप आयनिक एंड मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन को भी इस थ्योरी के बेस पे बताओगे। बट आपके क्लास 11 के सिलेबस के अंदर जो हमने पार्ट डिस्कस करना है उस पार्ट के अंदर हमको सिर्फ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को ही आपको पर्टिकुलरली बता के चलना होगा। तो दिस थ्योरी इज द थ्योरी बाय विच आप सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की फर्दर क्लासिफिकेशन को भी कंक्लूड कर सकते हो। तो दीज वर द मेन की पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी दैट ऑलवेज कीप इन योर माइंड।